IMK BMS 80, which is the entrance exam for BMS program at IIM Kozhikode, is going to be conducted on 22nd of June 2025. We are coming up with a crash course wherein we will be covering the whole syllabus that is going to be asked in the exam. This crash course is going to have 30 sessions and each session will be delivered to you on this YouTube channel itself daily at 9 pm. After this crash course is done, we will be providing you with the workshops that will definitely help you train for the exam. As of now, we know that the exam is going to have only QA section and VA section. There is no LR section asked in the exam. But the paper pattern of the exam is not known. As soon as we come to know about the paper pattern, we will definitely deliver 3 to 5 mock tests to you guys as well. So make sure that you subscribe to this channel and inform your friends that this course has started and they can benefit from it. And now let us start learning. Welcome to the session of simple interest, compound interest. This is a very interesting session and very straightforward session, or very straightforward I'll say topic. Okay. There is no out of the box thinking required in this topic. Okay. Very heavily formula based topic. Okay. There are only 2 or 3 formulas of SI and CI. इसी के अराउंड इसी को वही फॉर्मूला को थोड़ा तोड़ मरोड़ के हम लोग उसी के अराउंड पूरा घूमेंगे टू सॉल्व द एवरी क्वेश्चन. ठीक है. सो व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस टॉपिक? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस अज्यूम you as a person A lent some money to person B. ठीक है. कितना अमाउंट दिया आपने? रुपीज 10,000. You just assume that you have lent the money rupees 10,000 and we borrowed rupees 10,000 from you. ठीक है. For the period of 1 year. Correct. Now in today's age, what is the value of 10,000 after 1 year? It is definitely going to increase because there is a concept called time value of money. Correct. So the value of money is definitely going to decrease after some years. मतलब जो चीज आपको आज 10,000 की मिल रही है वो चीज 1 साल बाद 10,000 की नहीं रहेगी, उससे महंगी हो जाएगी. करेक्ट. सो अगर आप ये बंदे को 10,000 रुपीज दे रहे हो एंड आफ्टर 1 ईयर विल यू टेक ओनली रुपीज 10,000 बैक? नहीं, क्योंकि ये आप शायद आपके बैंक अकाउंट में रखते थे या तो फिर आपने कहीं एफडी निकाला होता, कहीं आरडी में रखते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन इससे कुछ ना कुछ तो कमाई लेते थे आप, थोड़ा तो इंटरेस्ट कमाई लेते थे ना. तो उतना ही इंटरेस्ट आप ये बंदे से लोगे. करेक्ट. उतना ही इंटरेस्ट आपको अभी जिसने आपसे पैसा बोरो किया है उससे लेना है. करेक्ट. सो इंटरेस्ट लेने के 2 तरीके होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंडेड इंटरेस्ट. ठीक है. सो यूजुअली व्हाटएवर ट्रांजैक्शंस गो ऑन बिटवीन द 2 पर्संस, ठीक है, यूजुअली तो वो सिंपल इंटरेस्ट पे होता है. एंड whenever there a bank or any lending agency comes into play, they lend you money at compound interest. ठीक है. So simple interest मतलब क्या है? The principal amount, this is called as principal amount. जो पैसा आपने लिया है या आपने किसी को दिया है या आपने किसी से लिया है, that is called as principal amount. N और कोई लोग इसको T बोलते हैं, that is called as period for which the amount is borrowed. ठीक है. And R is the rate of interest. ठीक है. So simple interest is calculated using PNR upon 100. ठीक है. Principal into the amount into the duration for which the amount is borrowed and the rate of interest at which the amount is borrowed. ठीक है. सो क्या अगर उसने 10,000 रुपीज, आपने उसको 10,000 रुपीज दिया एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, तो ये क्या आएगा? इसका वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट आएगा मेरा 1,000. करेक्ट. तो क्या वो बंदा आपको 1,000 रुपीज रिटर्न करेगा? नहीं, ये तो सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट हुआ.
वो आपको टोटल अमाउंट रिटर्न करेगा विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। करेक्ट, ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट। ठीक है, अभी क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, क्या होगा कि अगर ये 1 साल की जगह पे 2 साल भी रहता था तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट वुड हैव बीन सेम। करेक्ट, principal amount in simple interest is independent of the duration. Principal amount in simple interest is independent of the duration. It remains same throughout the duration. Let it be 1 year, let it be 2 years, or let it be 10 years. But compound interest में क्या होगा? For first year, principal amount मेरा P है, rate of interest मेरा R, and the duration is N. For first year, N equal to 1. करेक्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है मेरा ए इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर एन। तो यहाँ पे क्या आएगा रेज टू पावर 1। करेक्ट, तो यही है मेरा अमाउंट 10,000। सेम इंटरेस्ट है मेरा 10% एंड ईयर इज फर्स्ट ईयर। ठीक है, 2 साल के लिए भी है लेकिन अभी मैं फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट क्या होगा मेरा एट 10%, 10,000 1 plus 1 by 10 are equal to 10 था, 10 by 100 is 1 by 10। ठीक है, so it is 11,000। करेक्ट, यहाँ पे क्या हो गया मेरा ये टोटल अमाउंट हो गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। करेक्ट, तो अभी जब सेकेंड ईयर का मेरा साइकिल स्टार्ट होगा तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। करेक्ट, मतलब ये T जो होता है दैट इज नथिंग बट द साइकिल फॉर विच आफ्टर विच द अमाउंट इज कंपाउंडेड। करेक्ट, ये कभी कभी एनुअली रह सकता है, कभी कभी मंथली हो सकता है, कभी कभी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंड दिस वाज A1, तो सेकेंड ईयर के बाद मतलब टोटल ड्यूरेशन के बाद ये अमाउंट कितना होगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट का 2000। करेक्ट, तो टोटल अमाउंट कितना होगा इसका 10,000 प्लस 2000 मतलब 12,000। बट कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट क्या रहेगा मेरा 11,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाय 10, क्योंकि ये क्या आएगा 10 बाय 100 रेज टू पावर 1। सेकेंड ईयर का एक ही साल है ना, वो 1 साल यहाँ पे हो गया मेरा, 1 साल यहाँ पे आएगा। सो 1,1,000 इंटू 1.1। करेक्ट, तो ये क्या आएगा 12,210। तो इसमें क्या हुआ ये 210 रुपया मुझे ज्यादा मिल रहा है। करेक्ट, दैट्स वाई द बैंक्स विल लेंड यू द मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड ये तो मैंने एनुअल कंपाउंड किया। बैंक्स कभी भी आप देखो, आपके घर पे किसी ने अगर कार लोन लिया रहेगा, पर्सनल लोन लिया रहेगा, होम लोन लिया रहेगा, तो वो अमाउंट जो है वो कंपाउंड होती है, एक तो मंथली या तो फिर डेली। करेक्ट, अगर आपको देखना है ना, आप सिंपली ऐसे चेक कर सकते हो। अगर किसी ने 10,000 का लोन लिया ना, तो इफ द पर्सन हैज borrowed the amount for 1 year, that is 365 days, and he wants to pre-close the account at 11th month, after 11 months, मतलब 333 डेज के बाद उसको अगर क्लोज करना है, 334 डेज के बाद, तो उसका अमाउंट समथिंग डिफरेंट रहेगा। बट उसने 5 दिन डिले कर दिया तो वो अमाउंट और कम हो जाएगा। करेक्ट, जितना दिन वो डिले करते जाएगा उतना वो प्री क्लोजर का अमाउंट उसका कम होते जाएगा। मतलब वो जो इंटरेस्ट है वो एक दिन कम नहीं होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सो एक दिन का इंटरेस्ट उस पर चार्ज होते जाता है। ठीक है, अभी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, देन वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट, दिस विल बी एन, दिस विल बी। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट इफ ₹100 at the rate of first year, and the rate of interest is 10% in both the cases. ठीक है, सो फर्स्ट ईयर को 0th ईयर को द अमाउंट इज ₹100। करेक्ट, तो
एट द रेट ऑफ 10%, फर्स्ट ईयर के बाद मेरा सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 रुपीज, करेक्ट, 10 रुपीज। इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 रुपीज, करेक्ट। तो यहाँ का पी, अभी यहाँ का पी, ये पी को भी मैं ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का पी हमेशा मेरा चेंज होते रहेगा। दिस इज 100, इनिशियली दिस वाज 100, करेक्ट। नाउ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पी रिमेन्स सेम, बट यहाँ पे क्या होता है? ऐड हो जाता है। अभी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना रहेगा इसका? 10% ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट विच इज 10 रुपीज। यहाँ पे 10% ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट विच इज 110, सो इट विल बी 11। सो ये क्या हो जाएगा? 121। ये उतना ही रहेगा। ये अभी आप 3, 4, 5 कितना भी लेके जाओ, ये 100 का 100 ही रहने वाला है, बट ये मेरा हर बार बढ़ते जाएगा। ये कितना होगा? 12.1 एट द एंड ऑफ 3 years, मतलब 133.1 एंड so on. Correct? So if you see, the interest amount remains same for first year, irrespective of the rate of interest. Correct? In both the schemes, CI and SI, interest amount remains same at the end of first year, but interest amount in compound interest goes on increasing second year onwards. ठीक है? इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर इन कंपाउंड इंटरेस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। ठीक है, चलो नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम, टेक 1 minute and tell me the solution. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या आएगा फर्स्ट वन का आंसर? सम ऑफ रुपीज 16,000 वॉज लेंट एट 16% पर एनम, मतलब प्रिंसिपल कितना है? 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16% पर एनम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का स्कीम है। इफ द इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट इज 7680, द टाइम पीरियड इज, मुझे एन निकालना है, सो एस आई इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100, करेक्ट। सो एन इक्वल टू 100 इंटू 7680 डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू 16, करेक्ट। कितना आएगा इसका बताओ? 30 गया, years, correct. चलो क्वेश्चन नंबर 2, take 1 minute. What is the solution? A certain sum was lent at simple interest for 9 years. So principal P है, duration 9 years. It amounted to rupees 19200 at the end of 6 years. मतलब total amount became 19200, मतलब सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? 19200 माइनस प्रिंसिपल, करेक्ट। टोटल अमाउंट हमेशा क्या होता है? द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ 9 years it amounted to rupees 22800, correct. So simple interest amount at the end of 6 years is 19200 and amount at of 9 years is 22800, correct. Find the sum and rate of interest. So
जैसे हमने प्रिंसिपल इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा था पहले, उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द ड्यूरेशन. अभी interest amount also remains same unless rate of interest is changed. So यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया गया है करके? नहीं. करेक्ट. So rate of interest remains same and principal amount is also remain same. Therefore interest amount also remains same. मतलब हर साल 100 रुपया अगर आपने दिया होगा एट द रेट ऑफ 10%, आपको हर साल सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट 10 रुपया ही मिलते रहेगा. करेक्ट. तो यहाँ पे कितना मिला है? अभी यहाँ पे आपको क्या देखना है कि अमाउंट एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स एंड अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स में क्या हुआ है. 7, 8, 9 ईयर्स का सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड हुआ है. करेक्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 3, तो कितना आएगा? 3 इंटू SI इक्वल टू 22,800 माइनस कितना आएगा ये? 3600. मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1200. करेक्ट. सिंपल इंटरेस्ट कितना अमाउंट है मेरा? 1200. तो अभी प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा? तो एट दिए गए फॉर्मूला में रखूंगा SI इक्वल टू PNR अपॉन 100. करेक्ट. सो SI फॉर 6 ईयर्स कितना हुआ मेरा? 12 इंटू 6, 7200. So total amount after 6 years is 19,200. मतलब is equal to principal amount minus simple interest का amount after 6 years which is 7200. Correct. Therefore principal amount कितना आएगा मेरा? 12,000. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 1200 equal to 12,000 into this amount is for 1 year. Correct. Simple interest 1200 is for 1 year into R divided by 100. तो आपको इधर ही पता चल रहा है कि R equal to 10%. 12,000 पे 1200 मिल रहा है मतलब 10%. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्या बोला है? अ सम ऑफ मनी, मतलब कितना था पहले? P था, बिकेम 9 टाइम्स, मतलब बाद में कितना हुआ? 9P. इट्स ऑफ इटसेल्फ इन 33 ईयर 4 मंथ्स, मतलब 33 ईयर 4 मंथ मतलब कितना है? 1/3 ऑफ द ईयर है ना. 8 मंथ मतलब 2/3 एंड 12 मंथ मतलब 1 ईयर. सो 4 मंथ्स इज 1/3 ऑफ द ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? SI इक्वल टू PNR अपॉन 100. यहाँ पे ये क्या है? अमाउंट. ये क्या है? प्रिंसिपल. सो P प्लस SI. सो 9P इक्वल टू P प्लस SI. therefore SI इक्वल टू क्या आएगा मेरा? 8P इक्वल टू P इंटू N कितना है? 33 1/3 मतलब 100 अपॉन 3 इंटू R डिवाइडेड बाय 100. सो R इक्वल टू क्या आएगा? 24. करेक्ट. अभी इसमें अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अभी तक 3 क्वेश्चंस, दिस इज द 4th क्वेश्चन, कहीं पे भी ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि इस पे 100% कैट में आउट ऑफ 34 मिनिमम 1 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चंस. ठीक है. एंड मेजोरिटी क्वेश्चंस इसी सेक्शन में आते हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं दिए रहेंगे, आपको TITA टाइप का क्वेश्चन आएगा. करेक्ट. सो यू हैव टू बी 99% एक्यूरेट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. दैट्स व्हाई हमने इसमें ऑप्शंस ही नहीं दिए. आपका कैलकुलेशंस भी स्ट्रांग होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. चलो क्वेश्चन नंबर 4 in 1 minute. Anybody got the answer?
चलो लेट अस सी अ सम सम मतलब लेट अस से प्रिंसिपल अमाउंट इज p, क्वाड्रुपल्स मतलब 4p हो रहा है इन 20 इयर्स, मतलब दिस इज द टोटल अमाउंट। तो इसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना है इन 20 इयर्स? 3p, करेक्ट, एट सिंपल इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट आर पर pa इज 1 परसेंटेज पॉइंट मोर, मतलब अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है r, करेक्ट। प्रॉब्लम के लिए कितना बोल रहे हो, अगर r+1 होता तो कितना होता? द टाइम टेकन बाय सम टू ट्रिपल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट उसका ये टाइम में 2p होता, करेक्ट, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना हो रहा है इसका 3p। तो टाइम कितना है यहां पे, टाइम कितना है 20 इयर्स, करेक्ट। चलो एस आई इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100, मतलब 3p इक्वल टू p इंटू 20 इंटू r अपॉन 100। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम। अभी यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 16% अगर होता था तो 2p इंटरेस्ट कमाने के लिए मुझे टाइम कितना लगता था? सो 2p इक्वल टू p इंटू n इंटू r डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा? n इक्वल टू 50 अपॉन 16, 25 अपॉन 4, 6.25। sorry 200 upon 60, so this will be 100 upon 4, 100 upon 8, 12.5 years, correct? Sure. Next, 1 minute. Let us start with the solution. Anand lent a total of 4,000 for 2 years divided equally among 2 persons at simple interest, मतलब P1 P2 कितना है 2000, correct. The rates at which he lent the money for to the first and second person were R1 and R2, 8%, 12%. फाइंड द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। चलो क्या आएगा, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 अमाउंट फॉर 2 years एट 8%, कितना आएगा 320 रुपीज, करेक्ट। एंड एट 12% कितना आएगा 480 रुपीज, करेक्ट। दोनों का टोटल कितना है मेरा 800 rupees, correct. So this is the total simple interest he earned on his total amount of 4,000 in 2 years. So 800 equal to 4,000 into n into r, ये मुझे निकालना है on 100. So effective annual rate of interest is 10% per annum, correct. Simple question था. Now try this one. बहुत सिंपल टॉपिक है ये, इस पे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े अभी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, बट इसमें कंसेप्ट 2 फॉर्मूला और इसके बाद 1-2 फॉर्मूला आएगा, उसके बाहर कंसेप्ट नहीं जाता है, ओनली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। सही। इफेक्टिव एनुअल रेट मतलब कि 4000 उसने दोनों में डिवाइड किया था ना, करेक्ट। तो इफेक्टिव एनुअल रेट मतलब उसने अगर एक को 8% दिया, दूसरे को 12% दिया, वो तो ये पर्सन 1 एंड ये पर्सन 2 के लिए हुआ ना 8% एंड 12%, बट उसको दोनों से कुछ तो इंटरेस्ट अमाउंट मिला होगा, तो उसको फाइनल उसके 4000 के अमाउंट पे कितना परसेंट से इंटरेस्ट अमाउंट रिटर्न मिला, दैट रेट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एनुअल रेट। कभी कभी क्या हो सकता था कि उसके पास 6000 हो सकता था और उसने वो 3 लोगों में डिवाइड किया हो सकता था एट 8, 12, 16, करेक्ट।
तो उसको इससे डिफरेंट रेट मिलेगा, डिफरेंट इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा, इससे डिफरेंट मिलेगा, इससे डिफरेंट मिलेगा, बट उसको कंबाइन होके जो इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा उसका क्या रेट हुआ उसके लिए। अगर उसको उतना ही इफेक्टिव मतलब क्या कि अगर उसको उतना ही इंटरेस्ट अमाउंट सिर्फ एक बंदे को उसने पूरा 6000 अमाउंट दिया रहता तो क्या रेट पे मिला रहता, ऐसा समझा? यस सर। Try this 1 minute. Let us start with the solution. क्या बोला है? David lent certain sum to two persons at simple interest. He lent 2000 more to the first person than he did to the second person. मतलब there are two people. ठीक है, दोनों को उसने प्रिंसिपल अमाउंट दिया. लेट अस अज्यूम कि सेकंड पर्सन को P अमाउंट दिया तो फर्स्ट पर्सन को कितना दिया? P plus 2000. Correct. The rates of interest at which David lent to the first and the second person are 12 and 10% per annum respectively. The interest received from the first person in 2 years, मतलब इसका ड्यूरेशन कितना था? 2 years, equals that received from the second person in 3 years. Find the money lent to the first person, मतलब मुझे P plus 2000 का वैल्यू निकालना है. करेक्ट. सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पर्सन क्या आएगा? PNR अपॉन 100, दैट इज P plus 2000 into N into R, 24 on 100. दिस इक्वल्स फर्स्ट पर्सन का इंटरेस्ट और सेकंड पर्सन से मिलने वाला इंटरेस्ट उसका सेम है, तो P इंटू एन आर मतलब 30 अपॉन 100. करेक्ट. क्या आएगा? 24P 30P 6P इक्वल टू 48,000. Therefore P इक्वल टू कितना आएगा? 8,000. करेक्ट. सो उसने फर्स्ट पर्सन को कितना दिया? 10,000. बहुत सिंपल था. चलो नेक्स्ट 1 मिनट. Let us start with the solution. Now, what is the case over here? Amit lent a total of 12,100 to 3 persons at simple interest. Okay. So there are 3 persons over here. 1, 2, 3. The total amount is 12,100. But the relation between the principals lent to each and every person is not given. So I'll have to assume over here as X, Y, and Z. Okay. He lent to the first person at 16% for 5 years, to the second person at 12.5% for 8 years, and to the third person at 15% for 4 years. Correct. At the end of respective time periods, the amount repaid by first and second person were 7,200 each. So this is the total amount repaid. Correct. Total amount repaid, this is not the interest. Okay. So total amount repaid is same for both of them. तो थर्ड ने कितना अमाउंट रिटर्न किया ये मुझे फाइंड आउट करना है. करेक्ट. सो एक्स प्लस interest paid by first person is P into N into R upon 100, that is X into 80 upon 100 equal to Y plus P into R into N upon 100. So this becomes 12.5 into 8 is 100. So Y into 100 on 100. Correct. Therefore 9x equal to 18y. ये एक रिलेशन मिल रहा है मुझे. करेक्ट. 9x इक्वल टू 18y. ठीक है. और अगर मैं इसको दोनों को 7,200 से भी इक्वेट कर दूं तो मुझे y इक्वल टू पहले तो मिल जाएगा 3,600. करेक्ट. देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा?
7200, करेक्ट। तो z का वैल्यू मुझे आराम से मिल जाएगा, क्या आएगा 10,800, 12,100 मतलब कितना 1300। सो ये फाइंड द इंटरेस्ट दैट अमित रिसीव्ड फ्रॉम द थर्ड पर्सन। सो ये इसने z अमाउंट पहले तो कितना दिया वो मुझे फाइंड आउट करना है। टोटल 12,100 माइनस 7,200 माइनस 3,600, इसका एडिशन आता है 10,800, तो कितना आएगा 11,000, 1300, 1300, करेक्ट। तो इसने इंटरेस्ट अमाउंट कितना पे किया PNR अपॉन 100, 13 इंटू 60, 780 रुपीज, करेक्ट। चलो नेक्स्ट। सर वो लास्ट में क्या किया आपने 13 इंटू 60? ये PNR अपॉन 100 किया ना। हाँ। एक मिनट, ये थर्ड पर्सन का PNR अपॉन 100, ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया था। ठीक है, एक बार फिर से इसको करते हैं। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। ये 13 इंटू 60 का भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये क्या आएगा 5x प्लस 4x, 9x इक्वल टू 10y, y इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा 3600, ठीक है। 9x इक्वल टू 10y, मेरा गलती से 18y आ गया था, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अभी x इक्वल टू क्या आएगा 4000, करेक्ट। सो x इक्वल टू 4000, y इक्वल टू 3600, तो z इक्वल टू कितना आएगा 7600, 12,100 माइनस 7,600 कितना आएगा 4,500, करेक्ट। अभी इसने इंटरेस्ट अमाउंट कितना पे किया PNR मतलब 4,500 इंटू 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट। 45 इंटू 4 इंटू 15, 45 इंटू 4 आता है 180, करेक्ट। 182700, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये जो मैंने सिली मिस्टेक किया था, ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना आपको। चलो नेक्स्ट, 1 मिनट। देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन दिस प्रॉब्लम एंड द प्रीवियस प्रॉब्लम, ठीक है। बस उसमें क्या दिया था, टोटल अमाउंट दिया था, इसमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। पवन लेंट इक्वल सम्स टू 3 डिफरेंट पर्संस एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, सम अमाउंट लेंट इज सेम, मतलब मैं यहाँ पे P एज्यूम कर सकता हूँ, करेक्ट। पहले क्या था XYZ था, अभी यहाँ पे सेम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 8% एंड पीरियड इज 3 years, 13% फॉर 2 years and 7% for 4 years, correct. At the ends of the respective time period, the amount repaid by the first person, second and third person were, ठीक है। सो टोटल अमाउंट दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, करेक्ट। सो अभी ये मिलेगा मुझे P प्लस PNR फॉर द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सो 8 3 24 P अपॉन 100 इक्वल टू ये कितना है 2480, करेक्ट। सेकेंड वाले का कितना है P प्लस PNR मतलब 26P अपॉन 100 इक्वल टू 3780, एंड थर्ड वन का कितना है P प्लस 28P अपॉन 100 इक्वल टू 5120, करेक्ट। समझ रहा है। तो अभी तीनों को अगर मैं 100 एलसीएम लेता हूं तो क्या मिलेगा 124P अपॉन 100, 126P अपॉन 100,
128p अपॉन 100, ठीक है, इक्वल टू जो भी आएगा अभी। तो अगर ये 100 100 100 तीनों साइड से कैंसिल कर दिया, क्या आएगा? 248 000 378 000 512 000, करेक्ट। बस तीनों को ऐड कर दो, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। कितना आएगा ये? 100 200 300 एंड 26 इंटू 3, 378 p इक्वल टू 248 378 512, कितना आएगा? 1000। हो गया। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द टोटल सम्स लेंट टू द 3 पर्सन्स, मतलब 3p फाइंड आउट करना है मुझे, करेक्ट। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा? 126। तो ये कितना आना चाहिए? सर 9000 आंसर आता ना? करेक्ट। चलो नेक्स्ट, टेक 1 मिनट। चलो देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, sum of amount is p, correct। if the interest for 4th year is 1728, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? a इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r बाय 100 रेज टू पावर 4 आएगा अभी, करेक्ट। तो ये क्या मिलेगा मुझे? जो अमाउंट मिलेगा, टोटल अमाउंट मिलेगा, करेक्ट। टोटल 4 साल का अमाउंट मिलेगा मुझे, इसमें सिर्फ 4th ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट, सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, थर्ड ईयर का नहीं मिलेगा। इसके लिए मुझे सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो अगर मैं इसका टेबल निकालता हूँ ए टी एंड ईयर, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर के बाद कितना मिलेगा मुझे? एट द रेट ऑफ 20%, करेक्ट। तो ये रेस टू पावर 1 रहेगा एट द रेट ऑफ 20%, मतलब कितना आएगा? 1.2p,
करेक्ट। तो अभी इसको मैं बाद में लिखता हूँ, आर इक्वल टू 20 रखा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 1.2p। अभी फर्स्ट ईयर के बाद प्रिंसिपल कितना होगा 1.2p, ये कितना आएगा 1, फिर से मल्टीप्लाई तो 1.2 से होगा ना। अभी हर बार ये जो मल्टीप्लाई फैक्टर है मेरा 1.2 ही आ रहा है, तो क्या आएगा 1.44p, करेक्ट, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या है 1.44। फिर क्या आएगा 1.44p 1, ये क्या आएगा 1.728p, करेक्ट, क्योंकि 12 क्यूब इज 1 पॉइंट, सो 12 क्यूब इज 1728, करेक्ट। सो फर्स्ट ईयर के बाद इतना, सेकेंड ईयर के बाद इतना, थर्ड ईयर के बाद इतना। इसने क्या बोला है, द इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर इज 1728, मतलब ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसका ये फोर्थ, ये टोटल अमाउंट जो होगा ये फोर्थ ईयर के बाद होना चाहिए, करेक्ट। ये अमाउंट जो होगा उसका ये फोर्थ ईयर के बाद होना चाहिए, तो ये होगा 4 3 2, तो इसके पहले और एक जाएगा मेरा 1, तो जिसका ये अमाउंट होगा p, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट इसका p से थोड़ा छोटा आएगा, करेक्ट। मतलब डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट एंड सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इज 200। समझ रहा है, 1.2 1.2 से मल्टीप्लाई होते जाएगा, ये 1728 जब आया मेरा, दिस इज फॉर द फोर्थ ईयर। तो इसको मैं अगर उल्टा जाऊंगा 4 3 2 1, सो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का मेरा टोटल अमाउंट का डिफरेंस कितना है 0.2p, बस। अगर इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1000 था, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1000 ले लिया, डिफरेंस इज 200। चलो नेक्स्ट। सर वो नहीं समझा। ओके, सी, एक प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ड्यूरेशन ले रहे हैं हम लोग, एंड टोटल अमाउंट होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो अभी ये 4 साल के बाद बता रहा है कि इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर इज ₹1728, ठीक है। सो इंटरेस्ट मतलब क्या, अमाउंट मतलब क्या होता है, टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। सो आई एम सेइंग कि अमाउंट जो है मैं हर साल का निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर क्या रहेगा मेरा, p इंटू 1 प्लस 20 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि n इक्वल टू क्या है अभी मेरा 1, तो p इंटू 1.2, दिस इज द फर्स्ट ईयर का अमाउंट, करेक्ट। मतलब इसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना रहेगा अभी फर्स्ट ईयर, फॉर, ये थोड़ा उल्टा लिखते हैं इसके लिए आपको, so at the end of first year, at the, ठीक, at the beginning of first year पहले लिखते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट था मेरा p, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो अमाउंट हुआ मेरा वो क्या हुआ 1.2p, करेक्ट। सो एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर कितना होगा प्रिंसिपल अमाउंट 1.2p, यही अमाउंट रहेगा ना, इसी अमाउंट के ऊपर मेरा इंटरेस्ट चढ़ेगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है a माइनस पी, तो a माइनस पी करूंगा तो कितना आएगा 0.2p, ठीक है। नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर 1.2p हुआ, तो ये फॉर्मूला में जब मैं डालूंगा तो a2 इक्वल टू 1.2p इंटू ये जो टेबल है मेरा 1 प्लस 20/100 रेज़ टू पावर 1, इसका तो 1.2 ही वैल्यू आएगा हमेशा से, तो ये कितना आएगा 1.44p, करेक्ट, 1.44p। सो इसका टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा 0.24p, a माइनस p। थर्ड, एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर कितना रहेगा प्रिंसिपल मेरा 1.44p,
करेक्ट। सो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या रहेगा? वन पॉइंट सेवन टू एट पी, 1.728 पी, करेक्ट। सो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना रहेगा? 1.728 पी, मतलब ये इंटरेस्ट अमाउंट कितना रहेगा मेरा? 1.728 माइनस 1.44, कितना आएगा? 0.3 268 आ गए, करेक्ट। सो 0.268 पी, करेक्ट। अभी एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, सो एट द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर 1.728 पी आएगा, करेक्ट। सो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि 1.728 पी इंटू 1.2, ये कितना आएगा आपका? 2.0736, 2.0736 पी, करेक्ट। तो ये डिफरेंस कितना आएगा आपका अभी? जीरो पॉइंट थ्री फोर फाइव सिक्स पी, करेक्ट। तो उसने क्या बोला है? द इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर, इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द फोर्थ ईयर क्या है ये? इज इक्वल टू 1728। तो फाइंड द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो दिस माइनस दिस पूछा उसने, मतलब 0.04 पी का वैल्यू क्या आएगा, करेक्ट। तो अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ 0.3456 p इक्वल टू 1728, देयरफॉर p इक्वल टू 1728 अपॉन 3456, करेक्ट। तो अगर आपने इसको कैलकुलेट किया, दिस इज नथिंग बट 1/2, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 1/2, है ना जी। करेक्ट। बस इसको आपको क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 3 4, मतलब ये आएगा टोटल 5000 पी। अभी क्या पूछा है? 0.04 पी। बस इसको 0.04 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। $200। अभी समझा? हाँ सर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। टेक 1 मिनट। Let us try with the solution. Difference in the compound interest on 10,000 at 10% per annum and for 4 years and 2 years पूछा है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P in bracket 1 plus R by 100 raised to power n, करेक्ट। सो अमाउंट आफ्टर 4 years क्या आएगा मेरा? P 10,000 जो भी है अभी, ठीक है, इन ब्रैकेट 1 प्लस R by 100, मतलब
10/100 मतलब 0.1. सो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ 1.1. ठीक है. सो 1.1 रेज टू पावर 4. दिस इज द अमाउंट आफ्टर 4 years. ठीक है. सिमिलरली अमाउंट आफ्टर 2 years इज p इन ब्रैकेट 1.1 होल स्क्वायर. करेक्ट. लेकिन क्या उसने अमाउंट का डिफरेंस पूछा है? नहीं. डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है. अमाउंट क्या होता है? हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. उसने पूछा है I4 माइनस I2. करेक्ट. सो I4 क्या रहेगा मेरा? A4 माइनस P. करेक्ट. एंड I2 क्या रहेगा मेरा? A2 माइनस P. देयरफॉर P इन ब्रैकेट 1.1 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1. करेक्ट. दिस इज A4 माइनस P. सिमिलरली A2 माइनस P क्या रहेगा? P इन ब्रैकेट 1.1 स्क्वायर माइनस 1. तो अभी 1 में से 2 माइनस करना है. तो क्या आएगा? I4 माइनस I2 इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1.1 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 माइनस P इन ब्रैकेट 1.1 रेज़ टू स्क्वायर माइनस 1. सो P अगर मैं ब्रैकेट के बाहर निकालू तो क्या आएगा मेरा? +1 -1 कैंसिल हो जाएगा. सो 1.14 माइनस 1.1 स्क्वायर इट इज नथिंग बट P in bracket 1.1 square into 1.21 minus 1. सो P क्या है? 10,000. ठीक है. अभी 10,000 into 1.21 into 0.21 क्या आएगा? कर लो अभी ये. 100 into 121 12100 into 0.21 जितना भी आएगा दिस शुड बी 1/5 of this one. So somewhere around 2400 2500 के अराउंड. करेक्ट. 2541. ठीक है. जब तक जरूरत नहीं तब तक बड़े बड़े नंबर लिखो मत. चलो स्टार्ट. 1 minute. लेट अस ट्राई विद द सॉल्यूशन. क्या दिया है? अ सम लेंट. अभी सम कितना है पता नहीं. P लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पता नहीं. R2 अमाउंटेड टू 18700 एट द एंड ऑफ 3 years. मतलब इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 plus R by 100 raised to power 3 is equal to 18700. करेक्ट. एंड एट द एंड ऑफ 6 years मतलब P इन ब्रैकेट 1 plus R by 100 raised to power 6 equal to 20570. करेक्ट. तो अभी इसमें पूछा क्या है? फाइंड द सम. P पूछा है. मुझे R पता नहीं है. करेक्ट. P पूछा है जबकि मुझे R भी पता नहीं है. एंड दिस इक्वेशन इज ऑफ द डिग्री 3, दिस इज ऑफ द डिग्री 6. तो इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन एलसीएम एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है. इसको सीधा आपने क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम पे डिवाइड कर देना. ठीक है. तो P मेरा उड़ गया. ये 3 और ये 3 बचेगा यहाँ पे. करेक्ट. तो इसी का मतलब मिलेगा क्या मुझे? 1 plus R by 100 raised to power 3 equal to 2570 divided by 18700. करेक्ट. अभी ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा आ जाएगा, लेकिन क्या इसको थोड़ा शॉर्टकट में कर सकता हूं? अगर मैंने ये 1870 का 10% निकाला, 18700 इसका 10% 1870, तो क्या ये एडिशन इसके बराबर आ रहा है? 70502. करेक्ट. सो इसी का मतलब ये क्या है? 1.1. करेक्ट. अभी 1 plus R by 100 raised to power 3 का वैल्यू मुझे मिल गया है, जो मैंने इसमें रखा ये वाली इक्वेशन में. तो मुझे P का वैल्यू मिल जाएगा. P into 1.1 equal to 18700.
therefore P equal to 17,000. ठीक है, और ये क्वेश्चन पक्का आपको PITA में ही आएगा, टाइप इन द आंसर, क्योंकि इसमें यहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे. ठीक है, तो इसको ऐसे नंबर्स को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना है आपको. ठीक है, तो यूनिट्स प्लेस लास्ट 2 डिजिट्स मेरे अगर 70 के अराउंड दिख रहे हैं और ये लास्ट 3 डिजिट 700 है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 10% के अराउंड हो सकता है. एक बार करके देखो. ठीक है, तो हमेशा 10% ही होगा ऐसा नहीं है, बट आपको नंबर्स क्लोजली ऑब्जर्व करना है एंड यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद द नंबर्स टू गेट द कैलकुलेशन, टू मेक द कैलकुलेशंस सिंपलर. नेक्स्ट, टेक 1 मिनट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. चलो लेट अस सी क्या हो रहा है. कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर द फर्स्ट ईयर इज 300 एंड सेकेंड ईयर इज 390. ठीक है, सो एक चीज समझो, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि लेट अस सी दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड फाइनल अमाउंट. ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट अगर बिगिनिंग में P होगा एट रेट ऑफ इंटरेस्ट R, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके ठीक है 1000 ना, लेट अस सी. सो एट द एंड ऑफ द ईयर ये क्या होता है, जो भी P N R अपॉन 100. करेक्ट, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से. कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R बाय 100. करेक्ट, मतलब इसी का मतलब क्या होगा, ये सॉरी ये 100 इसी को इसी. ठीक है, इसको छोड़ दो, इतना डिटेल में मत जाओ. तो ये अमाउंट जो भी होगा, ये अमाउंट क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा. ठीक है, सो ये होगा P1 सपोज. ठीक है, सो ये P की जगह पे मैं अगर अज्यूम कर लेता हूं आपको 100 रुपीज. ठीक है, एंड प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट. ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट ईयर अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपीज था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, तो अमाउंट क्या हुआ 110. करेक्ट, मतलब अमाउंट क्या हुआ 100 प्लस 10. ठीक है, अभी सेकेंड ईयर के लिए क्या हुआ, ये प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 100, इसका रेट कितना हुआ 11 रुपीज, मतलब 121 अमाउंट हुआ. अब ये 11 रुपीज कहां से आया, 10 प्लस 1. करेक्ट, तो ये जो टोटल अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है, ये किस पे आया मेरा, इस पे. ये 10 रुपया जो था 10% ऑफ दिस वन, एंड ये 1 रुपया जो था वो 10% ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट. करेक्ट, 10% ऑफ दिस इंटरेस्ट अमाउंट. करेक्ट, तो मतलब सेकेंड ईयर का जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बढ़ा होता है, सेकेंड ईयर का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बढ़ा कितना मेरा, सिर्फ 1 रुपया. दैट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट. ठीक है, इसी का मतलब अभी ये एग्जांपल के हिसाब से अगर मेरा फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में प्रिंसिपल अमाउंट P था, इंटरेस्ट अमाउंट 300 था, तो अमाउंट कितना हुआ P प्लस 300. करेक्ट, सेकेंड ईयर में P प्लस 300 पे जो इंटरेस्ट अमाउंट लगा मेरा, वो कितना था 900, सॉरी 390. 300 प्लस 90 एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. करेक्ट, सो अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट रहता था तो प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता था, मतलब इंटरेस्ट 300 रुपए रहता था. तो ये जो 300 रुपीज है, ये तो एक्चुअल प्रिंसिपल पे. ये 90 रुपीज जो बढ़ा मेरा, ये 300 पे बढ़ा है. करेक्ट, ये 90 रुपीज जो बढ़ा, ये 300 पे बढ़ा है. इसी का मतलब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से चलू, अपॉन 100, that is 90 equal to 300 into 1 into R upon 100. Correct, therefore R equal to 30. Correct, तो find the sum of money. तो अभी ये R 30 है, निकालना है मुझे, तो इसके लिए P निकालना है. सो सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा फर्स्ट ईयर का 300. ठीक है, सो 300 इक्वल टू P इंटू 1 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100. सो ये क्या आएगा 10 1000.
₹1000। ठीक है, समझा? इसको आपको अगर सिंपल दूसरे तरीके से करना है, दूसरे तरीके से बताता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? A1 इक्वल टू P1 प्लस R बाय 100⁻1। ये हो गया फर्स्ट ईयर का। ठीक है, इसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? 300। ठीक है, A2 A1 इंटू 1 प्लस R बाय 100⁻1। ठीक है, एक तो यहाँ पे A1 की जगह पे P लो तो ये रेस्ट टू पावर 2 हो जाएगा, या तो फिर A1 की A की जगह P की जगह पे A1 लो, रेस्ट टू पावर 1 हो जाएगा। इसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? 390। ठीक है, तो अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि A1 की जगह पे ये पूरा वैल्यू रख के आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद भी आपको P इक्वल टू 100, P इक्वल टू 1000 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। समझा प्रीवियस वन सबको? एवरी टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है मतलब डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेके नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इजी होता है, उससे अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो पहले वो ट्राई करो। ओके, चलो लेट अस सी। आशा इन्वेस्टेड 40,000 फॉर 2 years, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो the interest rates for the first and the second years were 6% and 9%. So we have already seen compound interest and simple interest for first year remains same. ठीक है, compound interest and simple interest always for first year is same. ठीक है, interest amount. So 40,000 for 2 years. ठीक है, at 6%. तो फर्स्ट ईयर में उसका 6% हो रहा है, तो इंटरेस्ट अमाउंट उसका फर्स्ट ईयर का कितना होगा? 2400। करेक्ट, मतलब उसका प्रिंसिपल अमाउंट एट द रेट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना होगा? 42,400। अभी इस पे उसको 9% से मिल रहा है, मतलब मैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूँ, है ना? अभी इसका सीधा 9% निकाल लेता हूँ, कितना आएगा? 3816 आना चाहिए ना? कंफर्म कर लो एक बार सब लोग, क्या है आपका? हाँ सर 3816। 3816 ना? करेक्ट। तो क्या पूछा है? फाइंड द इंटरेस्ट पेएबल टू आशा, इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 5,000, 6,200, 16। गौरी कितना बोला था आपने? 6216। करेक्ट। चलो नेक्स्ट। एक 1 मिनट, चलो ट्राई करें, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? आई टेक गिव यू 30 सेकेंड्स में।
in 36 years a certain sum becomes 16 times itself. अमाउंट कितना हो रहा है? 16 times itself at the same rate of compound interest. The time in which the sum would double is. नहीं, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है वो. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अज्यूम कर रहा हूं आर. ठीक है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से ए इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर 36. क्या इससे ऐसे मेथड से सॉल्व करने में कोई मतलब बन रहा है? कुछ समझेगा ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना. सो इट इज बेटर कि आई ट्राई टू फाइंड आउट सम रिलेशन बिटवीन दिस वन एंड डबल करना है ना. करेक्ट. सो पहले क्या हुआ रहेगा, एक पी था, इसका 2p हुआ इन सर्टन ईयर. करेक्ट. n ईयर्स में उसका 2p हुआ, फिर उसका 4p हुआ उतने ही ड्यूरेशन में. करेक्ट. n ईयर्स में वो अमाउंट डबल हो रहा है. मतलब 100 का अगर 3 साल में 200 हो रहा है तो 3 साल में 200 का 400 होगा. करेक्ट. एंड 4p का 16p हुआ है इन अगेन n ईयर्स. करेक्ट. समझ रहा है. तो p का 2p हुआ n ईयर्स में, 2p का 4p हुआ n ईयर्स में, 4p का 8p होगा. सॉरी, 2 टाइम्स हो रहा है ना. सो 4p का 8p होगा कितने टाइम में? n ईयर्स में. अभी 8p का 16p होगा अगेन n ईयर्स में. करेक्ट. तो टोटल ड्यूरेशन कितना लगा उसको? 4n ईयर्स विच इज इक्वल टू 36 ईयर्स. देयरफॉर वो डबल का कितने टाइम में होगा? 9 ईयर्स में. सिंपल. इतना सिंपल था. जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे उतना जल्दी आंसर निकलेगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट. सर बोलो. 9 इयर्स कैसे समझ में नहीं आया. चलो देखते हैं. अभी ये प्रिंसिपल छोड़ दो. ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, ये प्रिंसिपल इज 100 रुपीज. ठीक है. तो आपने क्या किया, पहले 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, उसका सबसे पहले 200 हुआ रहेगा ना. डायरेक्टली थोड़ी ना 16 टाइम्स हुआ, मतलब वो डायरेक्टली थोड़ी 1600 हुआ रहेगा ना. 36 ईयर्स की ड्यूरेशन में सपोज 2020 में आपने अगर पैसा डाला है, 2056 में आपको वो 1600 रुपया मिलने वाला है. करेक्ट. बट उसके पहले वो कभी ना कभी तो 200 हुआ रहेगा. करेक्ट गौरी, समझ रहा है. यस सर. हाँ. सो दिस ड्यूरेशन आई एम अज्यूमिंग n ईयर्स. मुझे पता नहीं वो कितना है. इट इज डेफिनेटली लेस देन 36 ईयर्स. कितना है पता नहीं. ठीक है. उसके बाद वो 200 का कभी ना कभी जाके 400 हुआ रहेगा. अगर डबल अमाउंट होने के लिए n ईयर्स लग रहा है तो कितना भी अमाउंट हो, फिर वो 100 का मैं अगर 1000 लेता हूँ, 10,000 लेता हूँ, 1 लाख लेता हूँ, n ईयर्स में वो डबल ही होने वाला है, या डबल होने को वो n ईयर्स ही लेने वाला है. करेक्ट. फिर 400 का 800 होने के लिए फिर से n ईयर्स लेगा. सिमिलरली 800 का 1600 होने के लिए भी n ईयर्स लेगा. करेक्ट. तो अभी वो 16 टाइम्स हुआ ना खुद के. करेक्ट. तो उसने टोटल ड्यूरेशन कितना लिया? n प्लस n प्लस n प्लस n विच इज 4n इक्वल टू 36 ईयर्स. देयरफॉर n इक्वल टू 9 ईयर्स. समझा? यस सर. चलो नेक्स्ट. टेक 1 minute. Try to quickly find out the answer. This is a very easy question. अरे क्या है यार, बहुत इजी है, बताओ.
अनम्यूट मत करो। चलो लेट अस सी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 6%। ठीक है, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट सर्टेन सम मतलब P फॉर द फर्स्ट n years। ठीक है, दिस इज ड्यूरेशन is ₹2470। in the first n years the amount sum amounted to rupees, this is the total amount, correct? So A equal to P in bracket 1 plus R by 100 raised to power n, है ना। और एक फॉर्मूला क्या होता है मेरा, अमाउंट इज ऑलवेज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, करेक्ट। सो इसमें प्रिंसिपल मुझे मिल जाएगा, क्या आएगा प्रिंसिपल अमाउंट 22472 माइनस 2472 दैट इज 20,000, करेक्ट। बहुत सिंपल था। तो अभी इसमें क्या करना है, 6% का वैल्यू इसमें रख देना है। सो अगर आप देखोगे इसमें 22472 इक्वल टू 20,000 इन ब्रैकेट 1.06 रेज़ टू पावर n, करेक्ट। तो अभी ये n वेन के लफड़े में मत पड़ो, इसको आप कैट का पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपके पास कम से कम 2 मिनट होता है, ठीक है, कम से कम 2 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल कैलकुलेशन से चलो ना यार। अगर प्रिंसिपल अमाउंट आपका 20,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका 6% है, तो एक साल में आप टोटल इंटरेस्ट कितना कमा लोगे, 1200 रुपया, करेक्ट। ये हो गया आपका, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से करो, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से करो, फर्स्ट ईयर में तो उतना ही रहने वाला है, करेक्ट। अभी सेकेंड ईयर में टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 20,000 प्लस 1200 एट द रेट ऑफ 6%, करेक्ट। सो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 20,000 पे 6% तो 1200 रुपये मिलने वाला है, 1200 पे 6% से कितना मिलेगा 72 रुपीज, करेक्ट। अभी ये तीनों का एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा 2472, मिला कि नहीं। सो n इक्वल टू कितना है मेरा 2 इयर्स, बात खत्म, करेक्ट। 1.06 रेज़ टू पावर n करोगे, इसको डिवाइड करोगे, इसके बाद इसका वैल्यू कुछ तो क्या आएगा 1.0 समथिंग समथिंग आएगा, कौन इतना मगजमारी में पड़ेगा। सिंप्लीफाई द थिंग्स। कैट के इंटरव्यू में भी, आईएम्स के इंटरव्यू में जब भी आप जाओगे, यू आर गोइंग टू बिकम अ मैनेजर, सो डू नॉट कॉम्प्लिकेट द थिंग्स अननेसेसरीली, सिंप्लीफाई देम एज मच एज पॉसिबल। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। और सर वो क्वेश्चन में 20,000 लेके भी कर सकते हैं ना? किसमें? मैं इसमें ना, हाँ कि हाँ तो कैसे 20,000 लेके करोगे? सर 22,000 ये जो अमाउंट है उसमें से ये तो 2,472 माइनस करके, हाँ तो वही तो किया ना, 20,000 आ गया ना प्रिंसिपल अमाउंट, ओके सर। है ना। आपको n निकालना था ना, हम्म, तो n निकालने के लिए आपको ये यहाँ पे जाके डिवाइड करना पड़ता था, फिर उसका वैल्यू आगे कैलकुलेशन करना पड़ता था ना। नहीं वो 20,000 पे 6% पहले सिंपल इंटरेस्ट, फिर बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए अमाउंट आती थी 2 वही तो किया यार, ओके सर। बस क्या भी। चलो नेक्स्ट, टेक 1 मिनट। अभी इसमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो हम लोग a इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर n, ये n जो लेते हैं ना, ये n जो लेते हैं, ये कितना टाइम कंपाउंड हो रहा है एक साल में वो लेते हैं। मतलब अगर एक साल में वो पूरा जैन टू दिसंबर में सिर्फ एक ही बार कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट, तो उसको 1 लिखेंगे, ठीक है। बट अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अज्यूम करो कि 100 रुपीज आपने 10% की इंटरेस्ट से दिया हुआ था, ठीक है। सो एनुअल कंपाउंडिंग अगर होता था मेरा
तो एक साल बाद कितना अमाउंट होता था मेरा 110 रुपया, करेक्ट। बट हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है तो ये 110 रुपया मेरा जून में ही हो जाएगा, नहीं, ये हाफ ईयरली कंपाउंडिंग जब होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए ड्यूरेशन को अगर मैं टोटल टी लिखूं विच इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। सो 1 ईयर को मैं जितने पार्ट्स में ब्रेक करूंगा उतने ही पार्ट्स में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ब्रेक होगा, ठीक है। मतलब 1 ईयर को अगर मैंने हाफ ईयरली किया मतलब 2 पार्ट्स में ब्रेक किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, मतलब क्या होगा r/2 r/2, करेक्ट। इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया तो ये क्या हो जाएगा मेरा t इक्वल टू 3n हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हर 4 महीने बाद वो अमाउंट कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना समझो कि टोटल ड्यूरेशन t जो है उसको मैं जितना बार ब्रेक करूंगा, मतलब अगर हाफ ईयरली कंपाउंड किया तो एक साल को मैंने 2 में ब्रेक किया, अगर क्वार्टरली ब्रेक कंपाउंड किया तो एक साल को मैंने 4 पार्ट्स में ब्रेक किया, करेक्ट, बिकॉज देयर आर 4 क्वार्टर्स इन 1 ईयर। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेरा उसी प्रोपोर्शन में ब्रेक होगा, मतलब ये हाफ ईयरली के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा r/2, क्वार्टरली के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा r/4, करेक्ट। ये प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें क्या हुआ है कि ₹6,000 was linked at 40% per annum, रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी पर एनम होगा, ठीक है, बट इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये अगर मेरा t इक्वल टू 2n हो गया, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा r/2, ठीक है। हैड द इंटरेस्ट बीन कंपाउंडेड क्वार्टरली, वो बोल रहे हैं कि 6,000 अभी तो 40% से हाफ ईयरली कंपाउंड करके दिया, बट 6,000 अगर क्वार्टरली कंपाउंड करके देता था एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दैट वुड हैव बीन रियलाइज्ड इज, तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्या हुआ रहता, तो एक साल को मैंने कितने पार्ट्स में ब्रेक किया 4 पार्ट्स में, तो मेरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा r/4, करेक्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 20%, इसमें कितना आएगा 10%, करेक्ट, एट द अमाउंट 6,000, करेक्ट। चलो तो दोनों का सिंपल कैलकुलेशंस करना है हमें कि कंपाउंडिंग साइकिल कितना हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट कितना था, इंटरेस्ट अमाउंट कितना था, ठीक है। सो फर्स्ट कंपाउंडिंग साइकिल की एंड में प्रिंसिपल अमाउंट कितना था मेरा, पहले तो 6,000, उस पे एट द रेट ऑफ 20% कितना आया 1200 का इंटरेस्ट आया, मतलब मेरा टोटल अमाउंट कितना हुआ 7,200, करेक्ट। वो अमाउंट 7,200 इज द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड साइकिल, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, ये 1200 प्लस इस पे 20%, मतलब 1440, करेक्ट। सो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 8,640, ठीक है। ये हो गया हाफ ईयरली के लिए। अभी कंपाउंडिंग के लिए देखते हैं, सॉरी क्वार्टरली के लिए देखते हैं। सो 6,000 था मेरा, फर्स्ट साइकिल के लिए 6,000 था मेरा, तो रेट ऑफ टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ एट द रेट ऑफ 10%, 600, करेक्ट। फिर सेकेंड साइकिल के लिए 6,600, इस पे एट द रेट ऑफ 10% से कितना मिलेगा 660, करेक्ट। तो ये कितना हुआ 7,260, करेक्ट। इस पे 10% से कितना मिलेगा 726, तो ये कितना हुआ 7,986, और इस पे 10% से कितना मिलेगा 798.6, करेक्ट। तो इसमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे 2640, इसमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे 262784.6, करेक्ट। तो देखो जितना मैंने क्या बोला था कि कंपाउंडिंग साइकिल जितना छोटा होगा उतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा और इंटरेस्ट अमाउंट भी ज्यादा मिलेगा। देखो यहाँ पे
स्ट्रेट अवे डिफरेंस पड़ रहा है, सिर्फ छोटा सा अमाउंट है 6,000 का। तो आप लोग जो होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन निकालते हो वो तो 50-50 लाख का होता है, और वो तो डेली या मंथली कंपाउंड होता है, ठीक है। तो उसमें कितना डिफरेंस पड़ता होगा देखो, इसमें कितना डिफरेंस हुआ है मेरा 144 रुपीज का, करेक्ट, 144.6 रुपीज का। The extra interest that would have been realized is 144.6 rupees. ठीक है, चलो नेक्स्ट। टेक 1 मिनट। इसमें क्या हो रहा है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर इज बीइंग ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स, मतलब 3 से कंपाउंडिंग साइकिल्स आ रही है, करेक्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, r/3 फॉर ईच साइकिल, दैट इज 3%, करेक्ट। प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, नहीं दिया है, सम ऑफ मनी इज p, तो इसमें हम लोग 100 रुपीज अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अभी इसमें 2 केसेस अज्यूम करने हैं, फाइंड द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर मैंने ये इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 4 मंथ की जगह पे एवरी 1 ईयर अगर लिया रहता, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज का टोटल अमाउंट कितना हुआ रहता, 109, करेक्ट। लेकिन अभी मैंने क्या किया, कंपाउंडिंग साइकिल छोटा कर दिया ताकि मुझे इफेक्टिव इंटरेस्ट ज्यादा मिले, ठीक है। तो अभी साइकिल प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। सो फर्स्ट साइकिल में प्रिंसिपल मेरा कितना था, p, मैंने कितना अज्यूम किया है, 100 रुपीज, करेक्ट। सो इंटरेस्ट रेट कितना है, 3%, मतलब 100 पे कितना मिलेगा, 3 रुपीज, टोटल कितना हो जाएगा, 103। सेकेंड साइकिल पे प्रिंसिपल कितना होगा, 103, तो इस पे इंटरेस्ट अमाउंट कितना मिलेगा, 100 पे 3 रुपीज, 3 रुपए पे 3%, मतलब 3.09, so it should be 106.09, this which is the principal for the third and last cycle। मतलब 4 मंथ का एक साइकिल है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये लास्ट साइकिल है। इस पे 3% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 103 पे 3.09, एंड इसका खुद का 3% कितना रहेगा, 106.09 को आप ब्रेक करो, 106.09 को ब्रेक करो, 100 प्लस 3 प्लस 3.09, और हर एक पे 3% निकालो, या तो फिर ओवरऑल भी निकाल सकते हो। इसका 3 रुपया, इसका कितना आएगा 0.09, और इसका कितना आएगा 0.09 प्लस 0.0003 समथिंग, ऐसा आना चाहिए। सॉरी 27, करेक्ट। तो ये टोटल आएगा मेरा कुछ तो 9.27, 3.1827, तो ये टोटल आएगा 109.2727, करेक्ट। तो 100 रुपीज पे 9 रुपए के ऊपर मैंने 27 पैसा एक्स्ट्रा कमाया, करेक्ट। सो इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 9.2727%,
समझा? नेक्स्ट, चलो कैलकुलेट करें। देयर आर टू केसेस, एक सिंपल इंटरेस्ट वाला है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है। बोला है कि हाउ मच मोर और लेस इंटरेस्ट वुड बी रियलाइज। अभी लेस तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मोर देन 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट से कभी भी ज्यादा ही अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। ठीक है, सो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ड्यूरेशन। ठीक है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। एसआई कितना मिलेगा मुझे? 20% एट 1500 इज 300 प्लस 300 फॉर 2 years। करेक्ट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? पहला ईयर का तो सेम रहेगा। करेक्ट। सेकेंड ईयर का कितना मिलेगा? तो सेकेंड ईयर का कैसे रहता है? 300 प्लस ये जो 20% था, ये जो 300 था, इसके ऊपर भी 20% मिलेगा। करेक्ट, तो 60 रुपीज, दैट इज 660। ठीक है, ऐसे करना है। अब ऐसे भी कर सकते हो इसको, अमाउंट इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100, 1 प्लस 20 अपॉन 100 रेज टू पावर 2। सो क्या आएगा? 1500 इंटू 0.2 1.2 1.44, इट इज नथिंग बट 15 इंटू 144। कितना आएगा? 2160। करेक्ट, दिस इज द टोटल अमाउंट। इसमें से मैंने अगर प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? 660, विच इज जस्ट द इंटरेस्ट। तो कितना आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला रहता? 60 रुपीज। वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एंड द अमाउंट टू बी रिपेड आफ्टर 5 years इज 3000 मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू। मतलब P प्लस 3000, दिस इज द अमाउंट। मतलब ये है क्या? सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट। तो 3000 इक्वल टू पी एन आर अपॉन 100। पी इंटू एन कितना है? 5, 12, 100 हो गया, इधर ही खत्म। क्या आएगा? P इक्वल टू 3000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60, 5000। अभी सक्सेसिव इंटरेस्ट का एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या होता है कि लेट अस से यू हैव टेकन अ लोन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, लेट अस से 10,000। ठीक है, एंड दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का तो प्रिंसिपल हमेशा मेरा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या हो रहा है कि सक्सेसिव इंटरेस्ट मतलब आपने लोन अमाउंट लिया 10,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। ठीक है, मतलब आपका टोटल अमाउंट हर एक साल के बाद कितना बढ़ रहा है? 10% से बढ़ रहा है। बट आप जो रीपे कर रहे हो दैट इज अराउंड 2000 पर ईयर। ठीक है, तो एनुअली देखते तो फर्स्ट ईयर के एंड में 10,000 के ऊपर 10% मतलब आपका टोटल अमाउंट कितना था? 11,000। करेक्ट, लेकिन इसमें से आपने क्या किया? 2000 पे किया, तो आपका टोटल प्रिंसिपल बचा कितना फिर? 9,000। तो इसके ऊपर आपको अभी 10% इंटरेस्ट लगेगा। करेक्ट, सो इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मतलब कितना? 9900। उसमें से फिर से आपने ईएमआई निकाला हुआ है, एनुअल ईएमआई था आपका 2000 का। ठीक है, तो इसके बाद बचा कितना? 7,900। करेक्ट,
इसके ऊपर मेरा, क्योंकि प्रिंसिपल मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट में एवरी ईयर या आफ्टर एवरी साइकिल, कंप्लीशन ऑफ आफ्टर एवरी साइकिल, लेट इट बी हाफ ईयरली, लेट इट बी क्वार्टरली, जो भी है, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होते जाता है। तो अभी आपका इस पे 10% लगने के बाद कितना होगा, इसमें 790 ऐड हो जाएगा, मतलब 8690। इसमें से फिर से आपने 2000 पे किया, करेक्ट। सो बचा कितना, 6690, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो बहुत हेवी फॉर्मूला है, इसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है कभी, अगर आया तो इट इज बेटर कि आप लोग सिंपल मेथड से ही सॉल्व करो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन विद द सिंपल मेथड। क्या दिया है, रवि बोरोड 3310 at 10% per annum, interest being compounded annually, ठीक है। He cleared the loan by making some successive payments of 1331 each, 1331 each at the end of every year, starting from the end of first year, ठीक है। सो उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था पहले, 3310, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, सर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चढ़ेगा उस पे, 331, करेक्ट। सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसका टोटल अमाउंट कितना होगा, 3310 प्लस 331, 3641, करेक्ट। इतना उसके पास पैसा होगा, करेक्ट। लेकिन उसने पे कितना किया, 1331, करेक्ट। सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ ईयर, सो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसके पास पैसा कितना बचा, 3641 माइनस 1331, इतना उसके ऊपर लोन बचा। कितना बचेगा ये, 331 मतलब 133310, ये बचेगा कितना, दिस शुड बी 2310, करेक्ट। इसी का मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर द प्रिंसिपल अमाउंट इज 2310, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स सेम 231, करेक्ट। तो क्या आएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट कितना होगा उसका, 2541, करेक्ट। इसमें से फिर से उसने 1331 पे कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, 0121, करेक्ट, 1210 एट द रेट ऑफ 10%। कितना इंटरेस्ट चढ़ेगा उस पे, 121। सो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1331, जितना उसने कंप्लीट पे कर दिया। तो उसको कितना टाइम लगा टोटल, द नंबर ऑफ इयर्स इन विच ही क्लियर्ड द लोन इज 1 2 3, ठीक है। इसके एडवांस लेवल के प्रॉब्लम हम लोग इसका जब एडवांस सेशन होगा प्रॉफिट एसआईसीआई का, उसमें लेंगे, ठीक है। इसके बहुत बड़े बड़े वैल्यू के क्वेश्चन नहीं आएंगे कैट में, छोटा ही वैल्यू आता है, बस वर्डिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, टेक 1 मिनट, चलो ट्राई करें। अरुण बोरोड अ सर्टन सम, मतलब ई, ये क्या है, एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। फॉर्मूला क्या है अपना, ए इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस r/100 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, ही रिपेड इट इन इंस्टॉलमेंट्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इयर्स, लेकिन सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट्स सिमिलर नहीं है, फर्स्ट ईयर में इतना पे किया, सेकंड ईयर में इतना पे किया, थर्ड ईयर में इतना पे किया, करेक्ट। सो मुझे इंडिविजुअल ईयर का अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट। सो फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में एट द रेट ऑफ 10% उसका प्रिंसिपल, उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ रहेगा, 1 प्लस पी इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/10 रेज़ टू पावर 1, दैट इज 1.1, करेक्ट। सो इसमें से ये हो गया मेरा P1, फर्स्ट सबसे पहला प्रिंसिपल था, ठीक है, जो उसने उठाया, ठीक है। इसमें से उसने 1 1
1100 पे कर दिया, करेक्ट। इसमें से उसने 1100 पे कर दिया विच इज इक्वल टू आई से P2, करेक्ट। अभी उसने क्या किया, सेकेंड ईयर में ये P2 के ऊपर उसका 10% इंटरेस्ट लगा विच इज P2 इंटू अगेन 1.1, करेक्ट, 1.1 इंटू P2, समझा। तो इसमें से उसने कितना पे किया, 1210, ठीक है। उसके बाद पास अमाउंट कितना बचा, लेट अस अज्यूम P3, तो उसमें से उसने कितना पे किया, 1331 एंड द अमाउंट वाज कंप्लीटली पेड, करेक्ट। सो कितना आएगा फिर, ये कैलकुलेशंस आप करो, आई विल गिव यू 1 मोर मिनट। क्या हो रहा है, इनिशियल प्रिंसिपल इज P रुपीज, तो फर्स्ट ईयर के बाद उसका अमाउंट क्या हो रहा है, A1 इज 1.1 P, ठीक है। कैसे आया, इन ब्रैकेट 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेस्ट टू पावर 1, देयरफॉर 1.1 P, ठीक है। यही A1 मेरा, इसमें से उसने क्या किया, 1.1 P में से A1 इज इक्वल टू 1.1 P में से उसने 1100 रुपया पे कर दिया। सो मेरा पास बचा कितना, P2 और सेकेंड ईयर, करेक्ट। सो सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना होगा मेरा, 1.1 P1, ठीक है। इसमें से उसने कितना पे किया, 1210, तो बचा कितना मेरे पास, P2, करेक्ट। सो थर्ड ईयर के एंड में उसका अमाउंट हुआ 1.1 P2, इसमें से उसने 1331 पे कर दिया, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, करेक्ट। इसी का मतलब 1.1 P2 इक्वल टू 1331, करेक्ट। देयरफॉर P2 इक्वल टू कितना आएगा, 1331 डिवाइडेड बाय 1.1 which is equal to 1210, करेक्ट। P2 इक्वल टू 1210, मतलब P1 इक्वल टू कितना आएगा, सॉरी 1.1 P1 इक्वल टू कितना आएगा, 1210 प्लस 1210, करेक्ट। क्या आएगा, 2420, देयरफॉर P1 इक्वल टू कितना आएगा, 2420 डिवाइडेड बाय 1.1, कितना आएगा ये, 2200, तो P1 इक्वल टू कितना आएगा, 2200, देयरफॉर 1.1 इंटू ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा इसका, 3300, ये इक्वेशन से 2200 प्लस 1100, देयरफॉर ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा मेरा, 3300 डिवाइडेड बाय 11 which is equal to 3000, करेक्ट। तो उसने कितना अमाउंट बोरो किया था, 3000 रुपीज, गुड। तब जाके उसका 10% के बाद अमाउंट बढ़ा, 3300 हुआ, उसमें से उसने इतना पे किया, फिर से बचा हुआ अमाउंट में से उसने उसका 10% बढ़ने के बाद कितना हुआ, उसमें से उसने इतना पे किया, करेक्ट। फिर बचा जितना था 1210, उस पर 10% के बाद 1331 हुआ, उसने कंप्लीट पे कर दिया, करेक्ट। एंड हियर वी हैव फिनिश्ड द टॉपिक, थैंक यू।